एवरीवन, वेलकम बैक। और आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट लेक्चर ऑन स्टेट ऑफ मैटर। हम ऑलरेडी बॉयल्स लॉ की बात कर चुके हैं, जहां हम लोगों ने प्रेशर टू वॉल्यूम रिलेशनशिप किया एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आज हम बात करेंगे चार्ल्स लॉ की। चार्ल्स लॉ इज टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। सो इट इज़ अ टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप एट कांस्टेंट प्रेशर। क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो आपको क्या मिलेंगे ग्राफ में? आइसोबार्स। चलिए देखते हैं कि चार्ल्स लॉ क्या है। फॉर एवन एनी गिवन मास of a gas at constant pressure, volume of a gas is directly proportional to temperature. It means if temperature increases, volume increases. If temperature decreases, volume decreases. So volume is directly proportional to temperature. Correct? For every 1 degree Celsius rise in temperature, make sure it is Celsius and not Kelvin. For every 1 degree rise in temperature, volume of a gas increases by 1 upon 273.15, which is the relationship of temperature in Celsius and Kelvin. Right? 1 डिग्री सेल्सियस जो है is equal to 1 degree is equal to 2.273.15 Kelvin of initial volume of gas at 0 डिग्री सेल्सियस। अगर इसका रिलेशनशिप हम मैथमेटिकली डिराइव करना चाहें, सो हाउ विल वी डू इट? मैथमेटिकली if volume of a gas at 0 degree Celsius is equal to V0 and volume of a gas at T degree Celsius is equal to Vt, volume है, then this volume at given temperature will be equal to its initial volume plus 1 upon 273.15 of the initial volume. इनिशियल वॉल्यूम का इतना परसेंटेज इंक्रीज कर जाएगा एट टी डिग्री सेल्सियस, एंड दिस इज व्हाट द टेम्परेचर टी। अगर 1 डिग्री होगा तो 1 अपॉन, टी डिग्री होगा तो टी अपॉन। सो वी कैन से दैट वी टी इज इक्वल टू वी नॉट, कॉमन ले लें अगर, 1 प्लस टी अपॉन 273.15, करेक्ट, विच कैन फर्दर बी रिटन एज वी नॉट 273.15 plus t divided by 273.15, right? यहाँ से क्या मिला हमें? From here new temperature scale, that is the Kelvin scale was defined. अगर हम ध्यान से देखें 273.15 प्लस टी आ गया. What do you mean by plus T? That is the Kelvin temperature. Temperature in Kelvin. इसका मतलब अब ये कैलकुलेशन तो बड़ी मुश्किल से लग रही है. So what we did, capital T यानी न्यू टेम्परेचर at given degree Celsius is equal to 273.15 प्लस टी, और टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस कितना है? 273.15. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द
relationship of Kelvin and Celsius. So Kelvin temperature scale is also called absolute टेम्परेचर स्केल, और यही है जो हम सबसे ज़्यादा हमारे इस केमिस्ट्री में यूज़ करेंगे, क्योंकि इट इज़ कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर. राइट. तो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर जो है इट इज़ यूज्ड इन ऑल द साइंटिफिक वैल्यूज़. कहीं वर्क्स कहीं भी काम हो रहा है केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, तो हम लोग हमेशा साइंटिफिक स्केल को ही यूज़ करते हैं. सो दिस स्केल इज़ यूज्ड इन ऑल साइंटिफिक वर्क्स. So now we can say that V naught is equal to at 0 degrees Celsius is equal to, sorry, V at given temperature is equal to volume at the 0 degrees Celsius plus multiplied by, sorry, capital T small at given temperature and the 0 degrees Celsius, and we will be taking it in Kelvin, where capital T and TO will be taken in Kelvin scale. सो यहाँ से देखो बहुत आसान हो गया. वी टी इज इक्वल टू वी ज़ीरो टी टी अपॉन टी ज़ीरो. सो कैन वी से रीअरेंज करें तो वी टी अपॉन वी ज़ीरो इज इक्वल टू टी टी अपॉन टी ज़ीरो लिखा जा सकता है. लेट वी टी इज इक्वल टू वी टू, वी ओ इज इक्वल टू वी वन, टी टी बी टी टू and T0 will be T1. So can we write in general V2 upon V1 is equal to T2 upon T1, and it can also be written as V1 upon V2 is equal to T1 upon T2. कोई फर्क नहीं है. Now look at it. V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2. ये भी लिख सकते हैं. यहीं से T1 को नीचे ले आए, V2 को ऊपर ले गए, एंड दिस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एंड दिस कॉन्स्टेंट इज K2 बिकॉज वी नो दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. अगर V विल बी इक्वल टू T, so there has to be some constant, and what is this constant? K2. So we can say that V is equal to K2T. Right? Now K2 is constant of proportionality of gas constant of proportionality of gas, that constant of proportionality that depends on pressure of gas, its amount, and the units of volume in which it is expressed. Correct? So K2 जो है it is the constant of proportionality that depends on pressure of the gas, amount of the gas and unit of the volume. क्योंकि वॉल्यूम के यूनिट आप जो छोटी यूनिट लिखते हो या बड़ी यूनिट लिखते हो उसके ऊपर K की वैल्यू डिपेंड करेगी. K2 depends on pressure of the gas, amount of the gas and units of the volume in which it is expressed. So यहाँ से हम कह सकते हैं that Charles law equation can be redefined
as mass of a gas is directly proportional to its absolute temperature राइट हम इस क्वेश्चन में बात कर सकते हैं. नाउ अगर हम इनके ग्राफ्स देखें, ग्राफ प्लॉटेड फॉर fixed mass of a gas between volume and temperature gives a straight line. क्योंकि सीधा है, directly proportional है, it will be inclined at 45 degree. It will give a simple straight line. Let us see how the graphs will look. Straight line where slopes of which reflect pressure, यानी कि आइसो बार देगा एट अ गिवन प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है एंड द स्लोप ऑफ द ग्राफ विल गिव प्रेशर. तो चलिए देखें हम वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर टेम्परेचर का ग्राफ. ये रहा वॉल्यूम V and this is what? Temperature T increasing. So it is going to be inclined. लेकिन ध्यान रखेंगे, let us say टेम्परेचर की वैल्यूज़ लेते हैं. इट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ डिग्री सेल्सियस में ले रहे हैं हम टेम्परेचर. 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या होता है? 273 केल्विन. मान लेते हैं ये हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, तो 373 केल्विन. उससे नीचे चलें, -100, -200, -300 केल्विन, इस तरह से चलता रहेगा. नाउ क्योंकि ये आपके पास ग्राफ बन रहा है और टेम्परेचर जो है इट विल स्टार्ट समवेयर फ्रॉम हियर, दैट इज दिस टेम्परेचर इज गोइंग टू बी 273.15 माइनस केल्विन. यहाँ से ग्राफ शुरू किया, इट इज़ गोइंग टू बी P1, क्योंकि वॉल्यूम कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा, टेम्परेचर कभी भी ज़ीरो नहीं, नीचे माइनस में नहीं जाएगा. सो दिस इज़ P1, P2, P3, P4. आपके पास कई सारे ग्राफ आ गए. हमने यहाँ पे 273 केल्विन 0.515 केल्विन माइनस में क्यों लिया है और यहाँ से ग्राफ क्यों शुरू किया है? क्योंकि वॉल्यूम इज़ ज़ीरो, देन टेम्परेचर always comes to -273 केल्विन. मतलब -273 केल्विन पे y एक्सिस ज़ीरो हो जाएगी, तो डेफिनेटली द इंटरसेप्ट विल बी ऑन द x एक्सिस. ये देयर हैज़ टू बी समथिंग ओवर हेयर रिमेनिंग, इंटरसेप्ट विल बी देयर. क्योंकि 273 केल्विन पे वॉल्यूम ज़ीरो हो गया, y स्केल जो है वो x से मिल गया, इसलिए ग्राफ हमेशा यहाँ से बनेगा फॉर वॉल्यूम टू टेम्परेचर ग्राफ. एंड दिस स्लोप इज कॉल्ड एज आइसोबार. आइसोबार माने प्रेशर की यूनिट होती है बार. सो आइसोबार का मतलब है इट विल बी कांस्टेंट प्रेशर. अब आपको वॉल्यूम प्रेशर्स दे दिए हैं अलग अलग. दे वांट टू आस्क यू विच प्रेशर इज हायर एंड विच प्रेशर इज लोअर. जानने के लिए हम क्या करेंगे, लुक एट दिस ग्राफ. सिंप्लीफाइड वर्जन लेते हैं, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम. P1, P2, P3, P4. Let us take at this temperature. Correct? At this temperature, volumes की वैल्यू देखते हैं. This is V1, V2, V3 and V4. Which volume is higher? Definitely जिसका y axis के ऊपर वॉल्यूम ज़्यादा ये रहेगा. Look. Correct? ये है V4, V3, V2, V1. So which one is higher? V1 is higher, V2 from V2,
V3 and then V4. And we know that relationship of pressure and volume कैसा होता है, inverse का. So P4, P1 will be less than P2, will be less than P3 and P4. So pressure P4 is maximum. Why so? Because we know pressure is inversely relation to volume. ज़्यादा प्रेशर कम वॉल्यूम. सो इसका मतलब एट अ गिवन टेम्परेचर V1 अगर ज़्यादा है तो प्रेशर कौन सा ज़्यादा होगा, P4. ईच लाइन or the slope of VT graph denotes pressure and is called isobar. Now let us see कि हमने ग्राफ को कहा है हमने कि यहाँ तक ही वॉल्यूम आएगा, इसके बाद वॉल्यूम ज़ीरो हो जाता है, टेम्परेचर डाउन नहीं आएगा. चलिए इसको ज़रा प्रूव करके देखते हैं. हाउ? हमने क्या कहा था, VT अपॉन V0 इज इक्वल टू TT अपॉन T0. वॉल्यूम हमने कहा ज़ीरो हो गया, ठीक है ना. VT कितना हो गया, ज़ीरो. सो एनीथिंग VT ज़ीरो आ गई तो ये ज़ीरो हो जाएगा टोटल वैल्यू. दिस इज इक्वल टू कैपिटल T अपॉन T0. और हमने लिखा था कैपिटल T एट अ गिवन टाइम और टेम्परेचर इज 273 प्लस द टेम्परेचर गिवन एंड T0 इज 273. फ्रॉम द इक्वेशन अगर आपको याद हो, VT इज इक्वल टू V0 1 प्लस T अपॉन 273. वी कैन से VT अपॉन V0 इज इक्वल टू 1 प्लस T अपॉन 273. ये हमारी फैक्ट वैल्यू जो हो चुकी है ज़ीरो. दिस इज इक्वल टू 1 प्लस T अपॉन 273. सो देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे. ज़ीरो इज इक्वल टू 1 प्लस T अपॉन 273. सो 1 इज इक्वल टू T अपॉन 273 माइनस, क्योंकि 1 उधर आएगा, देयरफॉर दैट T जिसके ऊपर वॉल्यूम ज़ीरो हो जाएगा विल बी -273 केल्विन. बात समझ में आई क्यों वॉल्यूम ज़ीरो हो गया एट -273 केल्विन. क्यों वाई एक्सिस ज़ीरो हो जाता है, एक्स इंटरसेप्ट रह जाता है. लुक एट इट. एंड दिस इज -273 केल्विन विद वॉल्यूम विच इज इक्वल टू ज़ीरो और टेम्परेचर -273 केल्विन. ये क्यों गैप रह गया है, क्योंकि -273 केल्विन के ऊपर आपका वॉल्यूम ज़ीरो हो जाएगा. एंड वी आर रीडिंग ग्राफ फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जा रहा है वॉल्यूम कम होता जाएगा. प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम कम होगा. इनिशियल वैल्यू वॉल्यूम की ये थी. जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जा रहा है वॉल्यूम भी कम होगा. और वॉल्यूम कम होगा कब, जब प्रेशर बढ़ेगा. दिस मीन्स at -273.15 degree Celsius, absolute temperature up to temperature where volume of gas becomes zero and gas will not exist. Just a small correction बच्चों, it is -273 degrees Celsius and not the Kelvin because we are taking the Celsius scale, not the Kelvin scale over here. अब गैस एग्जिस्ट नहीं करेगी ऐसा तो ये नहीं है कि वो गैस ख़त्म ही हो गई है. गैस ख़त्म हो गया लेकिन उसका स्टेट चेंज हो गया है. यानी कि 0 डिग्रीज -273 केल्विन के ऊपर जो आपकी गैस है, नाउ इट हैज़ बिकम अ लिक्विड. सो ऑल गैसेस गेट लिक्विफाइड बिफोर -273 डिग्री सेल्सियस. इस टेम्परेचर से पहले पहले सारी की सारी गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर. State of the matter changes from gas to liquid. Now the lowest temperature जो कि होता नहीं है लेकिन हाइपोथेटिकली
या एक्सपेरिमेंटली हम लोग इसको देखते हैं। लोएस्ट टेम्परेचर at which gas is supposed to have zero volume is called absolute zero. उसे हम absolute zero बोल देते हैं. So the all gases obey चार्ल्स लॉ. हर गैस इस लॉ को फॉलो करती है एट वेरी लो प्रेशर एंड हाईएस्ट टेम्परेचर. पॉइंट याद रखिएगा बच्चों. लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पर सभी गैसेस फॉलो चार्ल्स लॉ. At low pressure, high temperature, all gases follow Charles' law. Let's look at problem number 5.2. On a ship sailing in Pacific Ocean, where temperature is 23.4 degrees Celsius, तो ये आपको T given है, ठीक है. A balloon is filled with 2 liter air, ये आपको volume 1 given है. यानी what will be the volume of the balloon when the ship reaches इंडियन ओशन वेयर टेम्परेचर इज 26.1 डिग्री सेल्सियस. आपको T0 टी दिया है, इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल वॉल्यूम दिया है. दे आर आस्किंग फॉर द फाइनल वॉल्यूम, करेक्ट. सो इनिशियल टेम्परेचर हमें गिवन है 23.4 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर 26.1 डिग्री सेल्सियस, इनिशियल वॉल्यूम 2 लीटर, फाइनल वॉल्यूम आपको बताना है, राइट. ये सब चीज़ें हमें गिवन है. तो सबसे पहले हम कन्वर्जन कर लेंगे T0 की. 23.4 प्लस 273 केल्विन विच इज़ इक्वल टू 692.4 केल्विन. सिमिलरली TT को कर लेंगे 26.1 273 विच इज़ 992.1 केल्विन. तो आपको दोनों केल्विन टेम्परेचर्स मिल गए. नाउ वी विल apply Charles' law. V1 upon V2 is equal to T1 upon T2. हमें फाइंड आउट करना है V2. So V2 is equal to T1 upon T2 into T2 upon T1 into V1. T2 गिवन है आपको 299.1 upon 296.4 into 2. So from here we can calculate and we will get volume 2.018 liter. So आपको V2 मिल जाएगा by Charles law. नेक्स्ट लॉ देखते हैं बच्चों, दैट इज़ द गेल-यूज़िक्स लॉ. इस लॉ में क्या बताया जाता है कि प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप क्या है. इसे हम प्रेशर टू टेम्परेचर रिलेशनशिप कह सकते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम. कभी आपने देखा हो कि कोई चीज़ आपने बॉटल में बंद करके रखी हुई है, ठीक है, और उसे आपने ओपन में रखा है, यानी जहाँ टेम्परेचर चेंजेस होते हैं. तो जब हम उस बॉटल को या उस बॉक्स को खोलते हैं तो उसमें से एकदम से प्रेशर के साथ गैस बाहर आती है, राइट. सो दिस इज व्हाट इज द गेल-यूज़िक्स लॉ कि वॉल्यूम फिक्स्ड है इस कंटेनर का. लेट अस से देयर इज अ टिन कैन एट टेम्परेचर, लेट अस से ठंड गर्मियों में नहीं, सर्दियों में कहीं पड़ा हुआ है, कहीं भी पड़ा हुआ. टेम्परेचर कुड भी, लेट अस से आपने थोड़ा कम टेम्परेचर पे रखा था, 23 डिग्री सेल्सियस, 23 नहीं 30 पे रखा हुआ है इसको, ठीक है. और कुछ टाइम के बाद जब टेम्परेचर इंक्रीज़ कर गया या इसके अंदर कहीं मोल्ड्स बन गए तो टेम्परेचर इंक्रीज़ कर गया. नाउ दिस टेम्परेचर इज समवेयर अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. जब इस कैन को आपने खोला, व्हेन इट इज़ ओपनड, तो इसके अंदर से गैसेस कम्स आउट एट हाई प्रेशर. या कोई चीज़ जब आपने देखा होगा ख़राब हो जाती है तो वो कैन या बॉटल जो है थोड़ा फूल जाती है. दैट फूलना इज़ दैट कि वहाँ प्रेशर बढ़ रहा है
वॉल्यूम तो उतना ही था उसका, कैन के अंदर भी वॉल्यूम उतना ही है। सिमिलरली देखिए, आपने शायद नोटिस किया हो, प्रेशर इन योर टायर्स इंक्रीजेज इन समर्स। जितने भी आपके व्हीकल होते हैं उसका प्रेशर बढ़ जाता है, और प्रेशर इन टायर्स डिक्रीजेज इन विंटर्स बिकॉज ऑफ इन डिक्रीज इन प्रेशर। टेम्परेचर कम होगा, विंटर्स में प्रेशर कम हो गया। ठीक है, सो एट कांस्टेंट वॉल्यूम pressure of a fixed mass of a gas varies directly with the temperature। मैथमेटिकली अगर हम देखें तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब P अपॉन T इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। सो P अपॉन T इज इक्वल टू K3। और क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप में है, सो इस P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। दिस इज गोइंग टू बी द गेल-यूसिक्स लॉ। K3 क्या है? इट इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी that depends on mass of gas and volume of container। एक बड़ी मज़ेदार इसमें डेरिवेशन आती है बच्चों, दैट डिराइव गेल-यूसिक्स लॉ by using बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। अगर आपको याद हो, हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस जब पढ़े थे क्लास 9 में, तब भी ऐसा ही था। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एंड देन डिराइव दिस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अगर कुछ सीखी हुई याद है तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। गेल-यूसिक्स लॉ को कहते हैं डिराइव करिए बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ से। नाउ व्हाट इज बॉयल्स लॉ? P1 upon P2 is equal to V2 upon V1 because P is inversely proportional to V. Then Charles' law, V1 upon T1 is equal to V2 upon T2. क्यों? Because V is directly proportional to T. It can be rewritten as V1 upon V2 is equal to T1 upon T2. Now, putting values of V1 upon V2 in Boyle's law, what do we get? P1 upon P2 is equal to T1 upon T2 upon T1। सो हमारे पास तीनों लॉज आ जाते हैं, दैट इज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड द गेल-यूसिक्स लॉ। इसमें क्या है? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एंड इट सेज दैट pressure is inversely proportional to temperature। Okay, pressure is directly proportional to temperature, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा। नाउ ईच लाइन ऑफ द प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ एट कांस्टेंट वॉल्यूम और द मोलर वॉल्यूम, एक मोल की बात कर रहे हैं, इज कॉल्ड आइसोकोर।
सो अगर ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर टू टेम्परेचर ग्राफ इन केल्विन. So this is what V4, V3, V2 and V1. Since pressure is increasing तो वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए. कहीं भी एक टेम्परेचर पे ले लेते हैं इस पे. दिस इज व्हाट P4, P3, P2, P1. Since P1 is less than P2 is less than P3 and then P4. So volume 4 will be less than volume 3 less than volume 2 less than volume 1. जिसका प्रेशर कम उसका वॉल्यूम ज़्यादा. लास्ट लॉ जो इसमें आता है बच्चों, दैट इज द एवोगैड्रो लॉ एंड इट इज कॉल्ड सो कॉल्ड एज वॉल्यूम टू अमाउंट रिलेशन. अमाउंट रिलेशन, वॉल्यूम टू अमाउंट रिलेशन मतलब वॉल्यूम टू नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है. नाउ equal volumes of all gases in same condition. कंडीशन माने टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर contain equal number of molecules. This is what is Avogadro law. Avogadro combined Dalton's atomic theory and Gay-Lussac's law of combining volume to give Avogadro law. तो कहता है कि अगर मान लीजिए आपके पास कुछ कंटेनर्स हैं, ठीक है, लेट अस से द कंटेनर इज A, B and C. All A, B and C has the volume equal to 1 liter. ठीक है. वो कहता है इसके अंदर जो गैस होगी वो सबका वॉल्यूम अगर सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम है. सो ही सेज Na गैस, Nb and Nc will be equal always. नंबर ऑफ मोल्स विल ऑलवेज बी बराबर. जितना वॉल्यूम होगा बढ़ेगा उतने नंबर ऑफ मोल्स भी इंक्रीज कर जाएंगे अकॉर्डिंगली. इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर remains constant, then volume of the gas is directly proportional to number of moles of the gas. Right? So इसका मतलब V is equal to K4N. What is this K4? Constant of proportionality. करेक्ट. और एवोगैड्रो कांस्टेंट क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23. हम देखते हैं इसको कैसे यूज़ किया जाएगा. नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे हैं. एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? एवोगैड्रो नंबर. राइट. तो कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर का मतलब हम यहाँ ले लेते हैं एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? 273 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस. और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है? 1 बार या 1 एटमॉस्फेयर विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 10⁵ पास्कल. ये हमारे स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं. करेक्ट. और ये हमें कहाँ मिलती हैं? यूजुअली एटमॉस्फेरिक में मिलेंगी. ठीक है जी. तो ज़रा ध्यान से देखो. 0 डिग्री सेल्सियस इज़ द फ्रीजिंग टेम्परेचर. पानी बर्फ़ बन जाता है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रीजिंग कंडीशन.
टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। ये प्रेशर जो है दिस इज व्हाट एटीएम प्रेशर एट सी लेवल। एटीएम हम किसको लिखते हैं, एटमॉस्फेयर को लिखते हैं, ठीक है। सो एट एस टी पी molar volume of an ideal gas or a combination of ideal gases is 22.7 लीटर पर मोल। तो आपको अब स्टैंडर्ड कंडीशंस याद रखनी है क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी। गिवन नहीं होगा, आपको बस एस टी पी लिख दिया जाएगा, आपको समझना पड़ेगा। सो टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन स्टैंडर्ड, प्रेशर 1 बार और 1 एटमॉस्फेयर और 10⁵ पास्कल, यहाँ भी लिख सकते हैं, और 0 डिग्री सेल्सियस। वॉल्यूम 22.7 लीटर, दिस इज द एस टी पी। नाउ व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज द मास गिवन denoted by small m upon molar mass capital M. So हमें पता है V is equal to K4n आ गया. So can we write K4 small m upon capital M, which can be rewritten as M is equal to K4 small m upon V. Now what is this small m upon V? Is equal to density. Look at this. So we can say molar mass is equal to K4 into density. So if density of a gas देखें is directly proportional to molecular mass of the gas at STP, जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास उतनी ज़्यादा डेंसिटी मिलेगी हमें। और हम आइडियल गैस के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं थोड़ी, तो एक बार फिर बता देते हैं। व्हाट इज़ एन आइडियल गैस? अ गैस दैट स्ट्रिक्टली फॉलो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ and Avogadro law. A gas that follows Boyle's law, Charles' law and Avogadro law is called as ideal gas at all the temperatures. उसे हम बोलते हैं आइडियल गैस। ऑल्दो कोई भी गैस आइडियल होती नहीं है, इट इज़ एन हाइपोथेटिकल सिचुएशन। दीज आइडियल गैसेस इसे हम लोग लैब में कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके कंडीशंस बना के तो हम देख सकते हैं, बट नेचर में बहुत कम गैसेज होंगी जो आइडियल होंगी, कहीं ना कहीं वेरिएशन आ ही जाएगा। सो आइडियल गैस इज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन एंड इन सच गैसेज इट इज एज्यूम्ड, पॉइंट इज एज्यूम्ड, होता नहीं है ऐसा कुछ भी, इट इज एज्यूम्ड दैट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर नॉट प्रेजेंट। और ये हम जानते हैं कि ऐसी कोई गैस नहीं जिसमें कोई इंटरैक्शन ना हो। अगर हम लोग बिल्कुल इनर्ट गैस लाइक हाइड्रोजन या हीलियम भी ले लें तो दे विल हैव इंस्टेंटेनियस इन डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन होगा ही होगा। सो देर आर सम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अवेलेबल इन ऑल द गैसेस। सो दैट इज़ वाई आइडियल गैस सिचुएशन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है। हाउएवर real gases follow these laws only at certain condition or you can say under specific conditions.
when forces of attraction are practically negligible, यानी बहुत कम हो। इसीलिए हम हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, इन्हें फिर भी आइडियल गैस मान लेते हैं क्योंकि उसके अंदर जो आईडी है वो बहुत ही कम है, इसलिए दे बिहेव एज आइडियल गैसेस। आज के लिए इतना ही बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे हमारी आइडियल गैस इक्वेशन की, आइडियल गैसेस के बारे में थोड़ी और बात करेंगे, एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियोरी। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।